Good evening. Today we are starting the rule models. We have done the other different models before. Today we are starting with the rule model. Rule models help to identify and document the business rules, business policies and decision frameworks that need to be supported by the solution. So what we do here is that we establish certain rules and the requirements must abide by those rules. So this is kind of a restrictive framework which encompasses all the requirements which fulfill those requirements, those rules. So business rules are constraints about how the organization wants to operate and are usually enforced by data and are processes and tend to be true over time. So when analyzing business rules, the objective is to capture what should and should not be allowed in the business enterprise. An important aspect of analyzing business rules is identifying the source of a rule. A key element of business rule analysis is the absence of technology. Do not consider technology when you are establishing the rules. Technology can come later. The rules should not be dependent on the technology. They should be generic in nature. We have two tools here. One is a business rules catalog and the other is decision tree and decision table. Decision tree and decision table could be treated as two separate tools, but they are here considered as one tool. Business rule catalog is a table of business rules and related attributes. It's kind of an index. Common attributes to capture in a business rules catalog include a unique identification number for the business rule. The rule description is provided. The type of business rule, there are multiple types, classifications that can be followed, and references to other related documents could be provided. Business rules themselves are not processes or procedures, but rather describe how to constrain or support a behavior. So these are either constraining or supporting the behavior. Business rules apply across all the processes and procedures and guide the organizational activities. These rules should be written in plain English and each row should describe one rule. So in one row, you must only show one rule. Do not enumerate a number of rules in one box or one row. Business rules should not be nested. Should not be conditional to each other. If this happens, then that happens. It should not be like that. They should be independent and each should also be able to stand independently. When creating business rules, the rules need to be correct, verifiable and consistent. There should not be a conflict between two rules. One rule is saying one thing, another rule is saying exactly opposite thing. This is not consistent. Then the rules you establish must be verifiable, must be correct. Just do not give out rules for the sake of it. You must have verifiable information provided in those rules. Catalog can be used to refer to related requirements or governance documents. Example, the partial business rule catalog is provided in table 4.6, which I'll be showing you in a while about the same project which we have been taking as example, the recipe box. For example, only customers have opted in for emails while, the customers who have opted in for emails will receive the recipe box email. So this you are to establish a rule for that, and that no personally identifiable information is allowed to be in the emails. So let us make the rules out of it. We have given an ID to these rules. For example, the first rule is BR01. Business rule title is receive email opt-in. The rule description is recipe emails will only be sent to customers
who have opted in and have a valid email address. This is what? Is it a constraint or what is it? It could be a fact, it could be a computation, it could be a constraint or anything else. References, see corporate email policy. So by corporate email policy, it can be verified that we do not send emails, mass emails to people who have not opted for those emails. So we are using that rule here. So this rule is verifiable. This is correct. Yes. Sir, I have a request. Can we do our session today in Urdu? Because I am unable to focus mentally completely. So Okay. I'm not able to understand what is business rule. Basically, आज मेरे बेटे की थोड़ी रिपोर्टें सही नहीं आई हैं, तो अच्छा मैं शायद इस वजह से फोकस नहीं कर पा रहा. Something अच्छा like that. ठीक है ठीक है. देखें ऐसा है कि हम ऐसे कानून बनाना चाहते हैं जिनके तहत फिर जितने भी काम होने हैं आपके इस जो आप बना रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में उन कवानीन को फॉलो करना है. आप वो कवानीन बना रहे हैं अपने प्रोग्राम या अपने प्रोजेक्ट के लिए. तो कंडीशन जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखी थी, जो ये आपके सामने भी आ जाएगी, हमने कहा था कि ये जो हम रेसिपी और बॉक्स वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें लोगों को ईमेलें जानी है, कस्टमर्स को. तो हम इसमें ये रूल बनाना चाहते हैं कि सिर्फ वो लोग जिन्होंने ऑप्ट किया है कि हमें ईमेल भेजें उनको भेजी जाए, मैस ईमेल ना भेजी जाए. और जो ईमेल भेजी जाए उसमें कोई जाती इंफॉर्मेशन उस कस्टमर के बारे में ना हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ, नंबर, नाम, कोई इस तरह की चीज, इस तरह की इंफॉर्मेशन ना हो. अब ये मेरा ख्याल है आप इसे एग्री तो करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए. इसको जब हम बिजनेस रूल कैटलॉग में डालेंगे, टॉप पे हम लिख देते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम, रेसिपी बॉक्स, और आप इसके कॉलम्स को देखिए, उसने एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दे दिया हर बिजनेस रूल को. हर बिजनेस रूल को एक शॉर्ट टाइटल दे दिया, एक छोटा नाम दे दिया जिससे उसको पहचाना जा सके, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है तीसरे कॉलम में. चौथे कॉलम में उसकी टाइप लिख रहा है कि ये किस किस्म का रूल है, क्या ये एक हकीकत है, ये किसी कैलकुलेशन के नतीजे में ये साबित हुआ है, या ये कोई कंस्ट्रेंट है, या कोई और चीज है. और आगे हमने रेफरेंस लिख दिया कि ये जो भी रूल हम दे रहे हैं, हमने कहा था ना कि वेरीफाइबल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. तो ये रेफरेंस हमें साबित करेगा कि ये रूल जो हमने बनाया है ये कैसा है, इसका रेफरेंस क्या है. तो पहला रूल हमने BR01 बनाया, हमने उसका नाम रखा रेसिपी ईमेल ऑप्ट इन. तो हम इसमें ये रूल इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने ईमेल पे ईमेल रिसीव करने के ऊपर हामी भरी है, सिर्फ उनको रेसिपीज भेजी जाएं. तो रूल ये बना कि रेसिपी ईमेल विल ओनली बी सेंड टू कस्टमर्स हु हैव ऑप्टेड इन एंड हैव अ वैलिड ईमेल एड्रेस. एक तो उन्होंने ईमेल पे रेसिपी रिसीव करने की हामी भरी है, और दूसरा जो ईमेल एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड किया है वो दुरुस्त भी है. ये हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया. इसका मतलब ये हुआ कि अब ये रेसिपी सवाए इन कस्टमर्स के जिन्होंने ऑप्ट इन किया था किसी और को नहीं भेजी जाएगी. और इसका हवाला जो हमने दिया रेफरेंस, वो हमने कॉर्पोरेट ईमेल पॉलिसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है उसको रेफर किया. दूसरा रूल हम बना रहे हैं, नो PII इन रेसिपी ईमेल. पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. PII पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन. उसने उसकी तफसील में लिखा कि रेसिपी ईमेल्स विल नॉट कंटेन एनी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन. ये भी कंस्ट्रेंट लगा दिया, और इसको भी हमने कह दिया कि ये कॉर्पोरेट ईमेल पॉलिसी से लिया गया है.
इसी तरह तीसरा रूल एक उसने बनाया, इंग्रेडिएंट्स इन स्टॉक। वो कहता है जी कि एक न्यू रेसिपी विल नॉट बी सेंट when more than 10% of the stores have a restocking status of greater than 24 hours for any of the ingredients. इसका क्या मतलब है कि ये स्टोर की तरफ से हमारे पे लिमिटेशन लगाई गई कि अगर उनके स्टॉक में जो आइटम्स हैं, जो पुरानी रेसिपीज आपने भेज रखी हैं, उनके आइटम जो हैं वो 10% से ज्यादा हैं और स्टोर जो है उसकी रीस्टॉकिंग 24 आवर्स में होनी है किसी एक भी इंग्रेडिएंट की, तो जब तक ये 10% से ज्यादा स्टोर में है, स्टॉक पड़ा हुआ है, तब तक हम नई रेसिपी फ्लोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमने नई रेसिपी फ्लोट कर दी तो उसके इंग्रेडिएंट्स पे सेल लग जाएगी और उसकी नीड बढ़ जाएगी। तो पहले हम एग्जिस्टिंग स्टोर का जो स्टॉक है उसको एड्रेस करना चाहते हैं। तो नई रेसिपी, इसका मतलब है ये एक लॉजिकल चेक होगा, ये कंप्यूटेशन या लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये चेक करेगा कि स्टोर में कितना स्टॉक पड़ा है और रीस्टॉकिंग होने में कितना टाइम पड़ा है, और उनकी बुनियाद के ऊपर ये कैलकुलेशन करके ये फैसला लेगा। तो इसलिए इसकी टाइप रख दी कंप्यूटेशन और उसको रेफरेंस दे दिया विल यूज इन्वेंट्री रिपोर्टिंग सिस्टम। जो हमने इन्वेंट्री रिपोर्टिंग सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करता है उससे इंफॉर्मेशन हम कैच करेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर ये इंग्रेडिएंट्स की स्टॉकिंग का मसला जो है इसको एड्रेस किया जाएगा। ये चंद एग्जांपल्स हैं और इस तरह ये एक पूरा कैटलॉग बन सकता है जिसमें बहुत सारे रूल्स होंगे। और ये रूल्स जो हैं, जो आपने पहले आइडेंटिफाई की हुई हैं चीजें कि कौन कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं चीजें, यूज केसेस आपने बनाए, बाकी चीजें आपने की हुई हैं, तो उसके हवाले से ये उन उन तमाम कामों के ऊपर ये रूल अब अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपका लॉजिक बनेगा इसके फ्लो का, वो इन रूल्स को के मुताबिक बनेगा। इन रूल्स को आपने कंसिडर करना होगा। इसका यूजेज क्या है? बिजनेस रूल्स शुड बी मेंटेन्ड इन अ रिपोजिटरी सच एज द बिजनेस रूल कैटलॉग। इसको कहीं ना कहीं महफूज रखना होगा, सेव करके किसी आर्काइव में रखना होगा, क्योंकि हमें बार बार इन रूल्स को अबाइड बाय करना है और इन रूल्स को फॉलो करना है। तो ये ना हो कि हम इनको महफूज ना रखें और ये रेफर ना करें। तो रेफर ना करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज करनी है, जो हमने प्रोग्राम या सोल्यूशन डेवलप करना है, उसमें इन रूलों का इस्तेमाल होना चाहिए। The rule need to be kept current and should be updated in the same manner as any other analysis model. जैसे हम बाकी एनालिसिस मॉडल्स को अपडेट करते रहते हैं, इस तरह इन बिजनेस रूल्स को भी वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहना पड़ेगा। बिजनेस रूल कैटलॉग can be maintained at a level above an individual project because business rules are often not specific to one project. क्योंकि ये बिजनेस रूल्स हैं, ऐसा मुमकिन है कि ये रूल्स सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के ऊपर लागू ना होते हों, बल्कि और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं किसी और प्रोजेक्ट पे या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे ये रूल्स अप्लाई करते हों। रूल्स अमूमन प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होते, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते। Business rules catalog can be traced to business objectives and other requirement types are analysis models in a traceability matrix to ensure that all business rules are captured. आपने जो अब तक काम किया है, ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स है या और चीजें हैं हमारे पास, उनको रेफर करें और इंश्योर करें कि जो जो कुछ आपने अभी तक इंफॉर्मेशन एलिसिट की थी उसकी रोशनी में क्या बस यही रूल बनते हैं या कोई रूल रह तो नहीं गया। तो ये इंश्योर करना भी हमारा काम। तो बिजनेस रूल शुड रिप्रेजेंट ऑल द रूल्स, और जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन एलिसिट की थी
उस सब को यहाँ कैप्चर हुआ होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, decision trees help to identify business rules, so a mapping business rule to decision trees would help to ensure completeness in this catalog. अगर कोई डिसीजन ट्री है इसकी सपोर्ट में, जिसके नतीजे में हम इस रूल तक पहुंचे हैं, अभी मैं आपको डिसीजन ट्रीज भी दिखाता हूं, तो उस सूरत में अगर डिसीजन ट्री के साथ इसका सपोर्ट है तो फिर डिसीजन ट्री भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि वेरीफाइबल होना चाहिए, उसका रेफरेंस होना चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप बनता है? इट इज कॉमन फॉर बिजनेस रूल to be identified in the normal course of eliciting and analyzing requirements. जब हम इंफॉर्मेशन एलिसिट या एनालाइज कर रहे होंगे तो ये बिजनेस रूल्स, इस तरह के बहुत सी कंस्ट्रेंट्स और रूल्स और फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे जिनको हम नोट करते रहेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ये बिजनेस रूल कैटलॉग में इनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। These rules could lead to functional requirements that are necessary to support the business rule. अब इन रूल्स के मुताबिक हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट डेवलप होंगी और उसके मुताबिक बाद में हमारा सोल्यूशन डेवलप होगा। रूल्स आल्सो इमर्ज इन डिस्कशंस ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दैट इन्वॉल्व डिसीजंस। डिसीजंस के हवाले से हम डिसीजन ट्रीज की तरफ चलते हैं, डिसीजन ट्रीज और डिसीजन टेबल्स की तरफ। डिसीजन ट्रीज and decision tables depict a series of decisions and the outcomes they lead to. जहां कहीं हमें फैसले लेने पड़ रहे हैं, ऐसा कर लें या वैसा कर लें, और फिर अगर उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लें तो फिर मजीद एक फैसला आगे आ जाए कि ऐसा कर लें या वैसा कर लें, तो इस फैसले के ट्री से गुजरते हुए सही फैसले तक पहुंचने के लिए हमें कुछ रूल्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। Decision trees and tables are often used to model business rules. Decision trees work best with binary choices, क्योंकि यहाँ decision tree में दो ही choices होती हैं, या ये रास्ता या वो रास्ता। सो जो भी रास्ता आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो किसी बिजनेस रूल के तहत हाँ या ना में आपको जवाब मिलेगा कि जिस बिजनेस रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। इसी तरह डिसीजन टेबल जो हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है जब एक दो से ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल हों एंड द एनालिसिस इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। अगर तो दो तक है तो डिसीजन ट्री हमारा काम कर देगा। अगर दो से ज्यादा ऑप्शंस आपके सामने आ गई हैं तो हम फिर डिसीजन टेबल्स का इस्तेमाल करें। डिसीजन ट्रीज are described in a tree of decision points where each branch represents a different choice. या ये कर लिया जाए या वो कर लिया जाए। The far right of a decision tree, the leaves, अब decision tree को अब यूं समझिए कि लेफ्ट साइड पे इसका तना है और राइट साइड पे ये ग्रो कर रहा है और एक्सट्रीम राइट पे इसकी शाखें और लीव्स हैं। और वो जो लीव्स हैं वो हमारे आउटकम्स हैं फॉर अ डिसीजन और सीरीज ऑफ डिसीजंस। हम डिसीजन लेना शुरू करते हैं तने से और इस तरह हम उन ब्रांचेस में सफर करते करते ये या वो चूज करते करते हम अल्टीमेटली लीव्स तक पहुंच जाते हैं और वहां पे हमारे फैसले, वो ट्री जो लीफ है वो मेरा हतमी फैसला है। Decision points in a decision tree are commonly represented as text at the branch point or in diamond shapes at branch points. मतलब जहां पे इस तने ने दो हिस्सों में बंटना है उस पॉइंट को हम डिसीजन पॉइंट कहते हैं और उसको डायग्राम की शक्ल में एक डायमंड की सूरत में शो किया जाता है। डिसीजन आउटकम्स आर टिपिकली शोन इन बॉक्सेस और जो नतीजा होता है डिसीजन का उसको हम बॉक्सेस में शो करते हैं। डिसीजन ट्रीज आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अभी जो हमने बात की कि बाएं से दाएं की तरफ, तो ये तो हमने इसकी हॉरिजॉन्टली बनाया। अगर हम इसको वर्टिकली बनाते, नीचे से ऊपर की तरफ बनाते, तो आउटकम्स जो हैं आपके वो एट द बॉटम आ जाते। डिसीजन टेबल्स यूज अ टेबुलर फॉर्मेट। जो डिसीजन टेबल्स हैं
उनमें एक टेबुलर फॉर्मेट है जहां पे ऊपर की जो रोज हैं इन द टेबल वो रिप्रेजेंट करती हैं डिसीजन पॉइंट्स को, और नीचे की जो रोज हैं वो उस टेबल के आउटकम्स को शो करती हैं। ईच डिसीजन पॉइंट रो enumerates a set of all valid choices or choice combinations. A dash in a cell indicate that the choice does not matter in determining the outcome in that column. Each outcome row is marked to indicate which choice combination is valid, और जो each column है of the table is a business rule that describes the set of choices for each decision point and the outcomes it lead to. When an outcome is unachievable, जब वो अचीव नहीं हो सकता तो उसको हम कंसिडर करते हैं इनडिफरेंट इन डिसीजन टेबल के, या यहां फैसला नहीं लिया जा सकता। डिसीजन टेबल में 4 एरियाज हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। कंडीशन स्टब है, लिस्ट ऑल द पॉसिबल कंडीशंस इन द प्रोसेस और एक्टिविटी बीइंग एनालाइज्ड। कंडीशंस हैं, इंडिकेट विच कंडीशंस आर मेट। एक्शन स्टब है, ये पॉसिबल एक्शन या रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस और एक्टिविटी बीइंग एनालाइज्ड को शो करता है। एक्शंस हैं जो कि इंडिकेट विच एक्शंस आर टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ द कंडीशंस दे आर मेट। पहले एग्जांपल को देख लेते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने अभी आ जाएगी। प्रोजेक्ट हमारा है सिलेक्ट रेसिपी। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर आपको स्टार्ट जो बॉक्स नजर आ रहा है वो है सिलेक्ट रेसिपी। इस सिलेक्ट रेसिपी में पहला हमारा जो ब्रांच आ रही है वो है स्टोर्स विद इन प्रेफरेंस रेंज। आया के जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंस रेंज में या जहां वो मौजूद है उसके इर्द गिर्द के एरिया में क्या कोई ऐसा स्टोर है जो आपका ऑफर प्रेजेंट करता है। अगर है तो हम आगे चलेंगे, अगर नहीं है तो हम यूजर को बता देंगे नंबर ऑफ स्टोर्स, कि कितने स्टोर्स हैं और कहां है। मतलब यहां जहां पे हमारा यूजर है वहां कोई स्टोर नहीं है जो उसको सर्व कर सके। अगर तो है तो फिर हम चेक करेंगे कि इन्वेंट्री अवेलेबल है किसी खास आइटम की या सब आइटम्स की या नहीं। अगर तो नहीं है तो फिर आपको बता दिया जाएगा जी। सर तो क्या इसमें जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट है वो डायमंड बॉक्स में आ रहा है और जो उसका आउटकम आ रहा है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, राइट? जी जी जी, जो डिसीजन पॉइंट है वो आपकी क्योंकि है, वो ट्रायंगल है, वो डायमंड है, और जो बॉक्सेस है ये आपका आउटकम है। अगर ऐसा हुआ तो क्या ठीक है करना क्या है, तो अगर इन्वेंट्री अवेलेबल ना हुई सब आइटम्स की तो हम यूजर को इन्फॉर्म करेंगे कि इन्वेंट्री कम है ताकि वो जाए ना स्टोर पे। और अगर यस है, इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो अगला जो हमने चीज देखनी है वो ये है कि प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो फिर हम यूजर को बता देंगे कि डेटा अवेलेबल नहीं है। और अगर है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है तो हम फिर उसका स्टोर मैप जो है आइटम्स का, कौन सी चीज किस शेल्फ में किस जगह पड़ी हुई है वो मैप शो कर देंगे उसकी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो 3 फैसले हुए, 3 यहाँ पे डिसीजन पॉइंट्स हैं। पहला, कोई स्टोर रेंज में है या नहीं। दूसरा, इन्वेंट्री वहां पर अवेलेबल है या नहीं। और तीसरा, प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन के कौन सी चीजें आइटम्स जो हैं वो कहां कहां पड़े हुए हैं। किसी भी सूरत में अगर हमारा जवाब नो होता तो हम यूजर को एक मैसेज भेजते, नोटिफाई करते कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो आपने देखा कि जो इसमें मोस्ट
ये रूल्स लग गए, सब रूल्स लग गए यहाँ पर, अगर ऐसा हो तो ये करना, अगर वैसा हो तो ये करना। ये जो कुछ कंडीशंस हैं, ये तीनों जो डिसीजन पॉइंट्स में आ रही हैं, ये हमारे रूल्स हैं और इनकी वजह से हम किसी आउटकम पे पहुंचते हैं। सो इसमें कौन सा आउटकम हमारे पास सबसे सूटेबल है या जो हमें रीच करना चाहिए, तो वो है डिस्प्ले स्टोर मैप विद आइटम्स। इसी तरह अगर मैं डिसीजन टेबल की बात करूं, तो आप यहां देखिएगा, कंडीशंस एक तरफ लिख दी और आउटकम्स एक तरफ लिख दिए, और फिर जो रूल्स थे हमारे 1 2 3 4 जो भी रूल थे वो लिख दिए गए। जहां तक कंडीशंस का ताल्लुक है, तो उसमें आपने जौन सी कंडीशन अवेलेबल हैं, क्या क्या कंडीशंस अवेलेबल हैं, अगर स्टोर विद इन रेफरेंस रेंज ना अवेलेबल हो तो क्या करना है। आप आउटकम में जाके देखिए, सिर्फ एक क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा है, वो क्या है, नोटिफाई यूजर विद नो स्टोर्स विद इन प्रेफरेंस रेंज। अगर आप गौर करें तो ये एग्जैक्टली वही फैसला है जो हमने डिसीजन ट्री में लिया था। यहाँ टेबुलर फॉर्म में आपके सामने आ गया कि अगर तो स्टोर में रेफरेंस विद इन रेफरेंस रेंज नहीं है, नो है इसका जवाब, तो फिर हमने ये करना है। अगर उसका जवाब रूल 2 में देखें, दूसरा रूल कहता है कि ये पहली कंडीशन यस है मगर दूसरी नो है, तो इस जो में भी हम जवाब देंगे कस्टमर को कि जनाब पहली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन नोटिफाई यूजर ऑफ लैक ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री नहीं है हमारे पास, इसलिए अभी आने की जरूरत नहीं है। तीसरा रूल है हमारा कि पहली दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तीसरी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, हमें स्टोर्स का लेआउट नहीं पता, तो हम दिखा भी नहीं सकते, तो इसका मतलब है हम नोटिफाई कर देंगे यूजर को कि ये डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। इन केस तीनों कंडीशंस में यस का जवाब आए, ये मेरा चौथा रूल बन गया, तो उस सूरत में डिस्प्ले स्टोर मैप विद आइटम्स। आपने देखा कि 3 फैसलों को हमने 4 रूल्स में डिवाइड किया। पहले में ही नो, दूसरा रूल है पहले में यस और दूसरे में नो, तीसरा रूल है पहले और दूसरे में यस और तीसरे में नो, और चौथा रूल है चारों में यस। तो जो भी अप्रोप्रिएट इसका आउटकम बनता है उसके सामने इसको हम मार्क कर दें। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ऑल गुड। फिर आपके ये तो थे आपके रूल मॉडल्स। इसके बाद हमारे डेटा मॉडल्स आ जाते हैं। डेटा मॉडल्स क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट करते हैं डेटा को जो कि आपने प्रोसेस में या सिस्टम में इस्तेमाल करना है अपने लाइफ साइकिल के दौरान। These models are used to depict relationship between data. डाटे के दरमियान का ताल्लुक शो करता है और ये शो करता है कि ये डाटा जो है कैसे प्रोसेसेस के साथ रिलेट करेगा, लिंक करेगा, एंड टू फर्दर हेल्प एक्सट्रैक्ट रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड बिजनेस रूल। हम मजीद रिक्वायरमेंट्स इसमें से कैसे निकाल सकते हैं, इस सिलसिले में हमारे पास 4 मुख्तलिफ मॉडल्स अवेलेबल हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है या डायग्राम है, डाटा फ्लो डायग्राम है, डाटा डिक्शनरीज हैं, स्टेट टेबल्स और स्टेट डायग्राम्स। पहले हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करते हैं। इसको ERD भी कहा जाता है और इसको बिजनेस डाटा डायग्राम भी कहा जाता है। ये क्या शो करता है? इट शोज द बिजनेस डाटा ऑब्जेक्ट्स आर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अ प्रोजेक्ट एंड द कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स। रिश्ता क्या है? Business data objects are the conceptual pieces of data that the business thinks and cares about and are not intended to refer to exact data objects in a database.
ये बिजनेस डेटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल की चीज है, ये कोई हकीकी डाटा नहीं है, और ये कंसेप्चुअलाइज किया है कि किस तरह से बिजनेस में डाटा चलेगा। ये बिजनेस डाटा ऑब्जेक्ट्स लोग भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती हैं, चीजें भी हो सकती हैं, और कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं जो कि जिसका बिजनेस जिसको इंपॉर्टेंस देता है, जिसके बारे में वो केयर करता है। बिजनेस ऐसा ये वो जो एंटिटी है, जी जी सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक एंटिटी बन जाता है और उस एंटिटी को हम एक डिफाइन कर देते हैं और एक रिलेशनशिप के साथ। जी एग्जैक्टली, वो भी एक एंटिटी है, एक आदमी भी एक एंटिटी है, एक जगह भी एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक एंटिटी है, इस तरह से। ठीक है, ओके। और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप दिखाई जाती है वो लाइनों की सूरत में दिखाई जाती है, और उन लाइनों की कार्डिनैलिटी जो है उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये लाइन क्या, मतलब उसका जो वैल्यू है, कार्डिनैलिटी का मतलब है उसकी वैल्यू या उसके बारे में कमेंट्स या वो क्या करती है लाइन, वो उसके लेबल में लिखा जाए। मल्टीप्लिसिटी इज इंडिकेटेड ऑन द रिलेशनशिप line to represent the number of times that one entity occurs in relationship to the other entity. Cardinality का मतलब इसने यहाँ क्या लिया कि यहाँ पे ये मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि 10 दफा चक्कर काटो। जी जी सर, मुझे EID बहुत अच्छे तरीके से आती है। अच्छा मैं इसके बहुत मेच्योर लेवल पे काम कर चुका हूँ डोमेन ड्रिवन डिजाइन के ऊपर। अभी सिर्फ इसलिए मैं आपसे सिर्फ मतलब इसकी ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। गुड। सिर्फ मुझे फायदा भी आपसे रिवीजन लेके ये हो रहा था कि इतने मेच्योर लेवल पे काम कर लिया था तो बेसिक्स जो है मेरी वो शायद जंबल अप हो गई थी। ओके ओके तो मुझे मल्टी पता है, रिलेशनशिप्स पता है, मैनी टू मैनी ये रिलेशनशिप सारे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्रो फीट भी जो आप समझते होंगे, जो डायग्राम आपके सामने है, ये इस्तेमाल करते हैं वन टू मैनी और ये। जी ठीक है, ठीक है सर, मैं ख्याल में डेटा मॉडल्स पे चलता है। ओके वेरी गुड। EID डेटा फ्लो डायग्राम भी इसी तरह से बड़ा कॉमन सा टूल है और तकरीबन हर कोई इसे इस्तेमाल करता है। डेटा फ्लो डायग्राम्स इलस्ट्रेट करता है वो रिलेशनशिप जो सिस्टम्स के दरमियान है, लोगों के दरमियान है, डाटे के दरमियान है, that is exchanged and manipulated over the course of one or many processes. It is a model that can be used after business data diagrams, process flows, and an ecosystem map have been created. अगर हम इस पाथ पे चले आ रहे हैं, ये डायग्राम आपने पहले बिजनेस डाटा डायग्राम और बिजनेस अपना प्रोसेस फ्लोज और इकोसिस्टम मैप वगैरह बना रखे हैं, तो डाटा मॉडल, ये वाला डाटा मॉडल जो है डाटा फ्लो डायग्राम्स का, ये बनाना आपके लिए बहुत आसान है। फिगर को एक नजर देख लें पहले। ये जनाब डाटा फ्लो डायग्राम का फिगर है। जो कस्टमर है उसको बॉक्स की सूरत में शो किया जा रहा है, जो काम है उसको हम सिलेक्ट स्टोर है, मैप स्टोर है, सिलेक्ट रेसिपी है, इन तीनों को हमने सर्कल की सूरत में शो किया है, और जो एक्शन है वो लेबल्स के ऊपर लिख दिए हैं, और जो जहां से चीजें आ रही हैं एंटिटीज वो स्टोर्स हैं, स्टोर मैप इंफॉर्मेशन है और रेसिपीज हैं। तो रेसिपीज जहां पड़ी हैं उसने डेटाबेस में से एक रेसिपी निकली मतलब सिलेक्ट हुई, तो सिलेक्ट रेसिपी जब करेंगे तो आप रेसिपी से रिसीव करेंगे एक रेसिपी। उस रेसिपी के जो आइटम्स हैं वो मैप स्टोर को भेजे जाएंगे ताकि वहां से वो चेक करे। और ये रेसिपी सिलेक्ट कहां से हुई? कस्टमर से एक लाइन रेसिपी सिलेक्ट हो जा रही है। असल में इनिशिएट उसने किया, कस्टमर ने रेसिपी सिलेक्ट की, रेसिपी आई
और उस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैप किया गया स्टोर के साथ, वो कहाँ पड़े हुए हैं, और मैप जो है वो ओवरले मोबाइल एप्लीकेशन पे कस्टमर को प्रोवाइड कर दे। मैप स्टोर में ये मैप आया कहां से, और ये ओवरले आइटम्स का ये मैप स्टोर मैप की इंफॉर्मेशन से आया, और स्टोर का नंबर हमें कहां से पता चल रहा है, जब कस्टमर ने रिक्वेस्ट की तो स्टोर की सिलेक्शन हुई, और स्टोर की सिलेक्शन स्टोर्स डेटाबेस से स्टोर को देखा गया, अगर तो वो है तो स्टोर का नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा मैप स्टोर को, वो उस स्टोर का जो शेल्फ लेआउट है वो निकाल के उसको शो कर दे। तो आप ये देख रहे हैं कि डेटा कैसे फ्लो करता है, ये आपका डेटा फ्लो डायग्राम है। ये हेडिंग इसके ऊपर गलत लिखी गई थी, डेटा फ्लो डायग्राम है ये, दिस इज नॉट डेटा डायग्राम, डेटा डिक्शनरी। ये समझ आया जी डेटा फ्लो डायग्राम का? सर बिल्कुल आया मैं समझ में। एक मिनट में इसको करेक्ट कर लूं। आपने डाउनलोड कर लिया था ये अपडेटेड वर्जन जो है? सर कल ही जो डाउनलोड किया था वही चला रहा था मैं अभी। आपने अपलोड कर दिया था एनालिटिक्स वाला? जी जी मैंने कर दिया था। चलो सर मैं बता दूंगा। ओके, इसके बाद आ जाती है डेटा डिक्शनरी। मैं एक मिनट आपको डेटा डिक्शनरी सामने ले आऊं। डेटा डिक्शनरी भी बड़ी सिंपल सी चीज है। एक्चुअली ये जितने भी टूल्स हैं, कहने को लगता है कि पता नहीं ये कोई बड़ी मशीनरी होगी जो मॉडल आ रहा है या क्या चीज है। दिस इज सो सिंपल, सो सिंपल। एक एक पेज की चीजें हैं, सिर्फ उसकी जो नोटेशंस हैं उनको समझना है, उसके सीक्वेंस को समझना है, पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, और वो कागज आप बनाते जाएं, आपका काम होता जाएगा। इट इज कंपैरेटिवली मच सिंपल। बट नेचुरली जब आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इसे अप्लाई करेंगे तो ये इतना सिंपल नहीं होगा जितना इधर नजर आ रहा है, क्योंकि इतना इट हैज टू बी एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है उसमें काफी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं, बहुत सारी लाइनें होंगी। तो डेटा डिक्शनरी जो है ये एक टेबुलर फॉर्मेट है, और ये शो करता है डेटा के डिफरेंट फील्ड्स को और उसके एट्रीब्यूट्स को। कॉमन एट्रीब्यूट जो हैं उनमें नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका साइज, उसका वैलिडेशन रूल, मतलब यूं समझ लीजिए कि डेटा के बारे में ये डेटाबेस है, डेटा अबाउट द डेटा। डेटा डिक्शनरी एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर जौन जौन से डेटे हैं वो हर रो में एक डेटा लिखा गया, और उसके आगे उसके बारे में मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं। So this dictionary will encompass all kinds of data. हर डाटा आइटम को हम एक लाइन में लिखेंगे, और उसकी तफसीलात सिर्फ रिमार्क्स में नहीं लिखी जाती, बल्कि वो डाटा कैसा है, वो फिगर, वो न्यूमेरिक है, वो फलाना है, इसमें कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है, छोटी आ सकती है, मतलब उस डाटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन हो सकती है वो उसमें डाली जाती है। So any relevant attributes can be captured in a data dictionary. अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी सूरत हाल में कौन सा डाटा रेलेवेंट है। यहाँ इसकी एग्जांपल को देख लीजिए। ये आपके सामने एक डाटा डिक्शनरी है, एक सिंपल टेबल। इस टेबल में हर डाटा डिक्शनरी आइटम, मतलब डाटा आइटम को एक नंबर दिया गया है। उसके बिजनेस डाटा ऑब्जेक्ट जो कि आपने पहले बनाया था उसका नाम लिखा है। बिजनेस डाटा ऑब्जेक्ट इस केस में है रेसिपी, पहले केस। उसके और उस डाटा आइटम का नाम जो कोड नेम है, फील्ड नेम है, वो है रेसिपी टेक्स्ट, और इसकी डिस्क्रिप्शन है दिस इज द रेसिपी इन फॉर्मेटेड लेआउट। क्या ये यूनिक है? क्या ये वैल्यू यूनिक है? अगर है तो यस लिखेंगे। डाटा टाइप क्या है? न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, इंटेजर है, टेक्स्ट है, क्या है? सो ये अल्फा न्यूमेरिक है। ये कितना बड़ा हो सकता है, लेंथ क्या है,
लेस देन 1000 कैरेक्टर्स। और इसकी वैलिड वैल्यूज क्या इसकी हो सकती हैं, एग्जाम्पल दी गई है। मिसाल के तौर पे REC_FRM01 इस तरह से भी नंबर दिया जा सकता है, क्योंकि ये अल्फान्यूमेरिक है। आप देखिए कि इस तरह से अगर मैं हर डाटा आइटम को यहां शो कर दूं तो मुझे डेटाबेस डाटा फील्ड्स डिजाइन करने में कितनी मदद मिल रही है। मेरे पास ये सब डाटा लिखा हुआ है डाटा डिक्शनरी के अंदर, मैं डाटा डिक्शनरी को सामने रख लूंगा और उसके हिसाब से मैं अपना डेटाबेस डिजाइन करना शुरू करूंगा। पहले फील्ड को मैं 1000 की लेंथ दूंगा या 999 की लेंथ दूंगा, उसको अल्फा न्यूमेरिक बनाऊंगा, उसको यूनिक बनाऊंगा, उसका नंबर जो उसकी वैलिड वैल्यू है उसके अंदर उसको मैं इस तरह का कोई नंबर बना के उसको दूंगा। इसी तरह से अगला जो आइटम है बिजनेस डेटा ऑब्जेक्ट आपका आइटम है और यहाँ पे रेसिपी यूपीसी कलेक्शन फॉर गिवन रेसिपी, ये भी अल्फान्यूमेरिक है और इसकी भी वही कंडीशन है। तीसरा वाला जो है वो इंटीजर है और 3 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स तक इसका डाटा दिया जा सकता है और इंटीजर की वैल्यू का 0 से बड़ा होना जरूरी है। और वो जो कोई भी नंबर होगा वो हमारे डेटाबेस में हमारे स्टोर के नंबर्स की लिस्ट में उस नंबर का होना जरूरी है, अगर नहीं है तो एरर मैसेज देगा। इस तरीके के साथ आप अपनी डाटा डिक्शनरी को पॉपुलेट कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं जी स्टेट टेबल्स एंड स्टेट डायग्राम्स। ये जो चीज है ये मॉडल इज अ वैलिड स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है रेसिपी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या क्या शक्लें इख्तियार कर सकती है, उसके क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो एम्प्टी या फिल्ड हो सकती है, वो यस या नो हो सकती है, या कोई भी उसका क्या क्या स्टेटस, एक से ज्यादा स्टेटस है, एंड एनी अलाउड ट्रांजिशंस बिटवीन दो स्टेट्स, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में वो ट्रांसफर हो सकता है। आप कहें कि जी एक आइटम जो है वो खत्म हो गया है, अब उसमें मजीद नहीं आना तो ये दोबारा भरा नहीं जाएगा, या आप ये कहेंगे कि जब ये आइटम खत्म हो जाएगा तो इसको रीफिल कर दिया जाए। स्टेट टेबल आर इन अ टेबुलर फॉर्मेट अगेन with all of the valid states in the first column and across the first row. Each cell represents the transition from state in a row to the state in the column. ये चीज अपना स्टेट चेंज करके कहां क्या से क्या बन जाएगी। सो जो उसका प्रेजेंट स्टेट है या पहले वाला स्टेट है वो रोज है और जो दूसरे वाला स्टेट है वो कॉलम है। इसका मतलब है कि अगर रो में वो स्टैंडिंग है और कॉलम में वो सिटिंग है तो इसका मतलब है वो स्टैंडिंग से सिटिंग स्टेट में जा रहा है। Transitions that are not allowed have cells that are marked with X, not available or no, because जहां पर इसकी गुंजाइश नहीं है। अलाउड ट्रांजेक्शन सिर्फ इसमें डाली जा सकती हैं, आप उसमें खाली जगह नहीं दे सकते, X नहीं दे सकते। Allowed transitions are represented in cells with either a yes or a no, yes or a description of the transition event that leads to the transition. स्टेट डायग्राम जो हैं कन्वर्सली वो शो करते हैं एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन एज स्टेट टेबल, बट इट इज इजियर टू विजुअलाइज द वैलिड स्टेटस एंड ट्रांजिशन बाय शोइंग ओनली द अलाउड ट्रांजिशन। हम सारी ट्रांजिशंस नहीं दिखाते, हम सिर्फ जो जो ट्रांजिशन अलाउड है वो दिखाते हैं स्टेट डायग्राम के अंदर। इसमें ओवल्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स को शो करेगा और लाइंस विद एरोज ट्रांजिशंस को शो करेगा और ट्रांजिशन इवेंट के दरमियान के स्टेटस। Some state diagrams are drawn by showing an initiation state and a termination state. इसकी एग्जांपल देखेंगे।
ये आपके सामने अब आ जाएगा। ये एग्जांपल है स्टेट टेबल की। जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है वो किसी एक चीज के पॉसिबल स्टेटसेस लिखे हुए हैं। इनिशियल स्टेट्स लिखे हैं ड्राफ्टेड, रिव्यूड, रिजेक्टेड, पब्लिश्ड और एक्सपायर्ड। और दूसरी तरफ टारगेट स्टेट्स लिखे हुए हैं, वो भी ड्राफ्टेड, रिव्यूड, रिजेक्टेड, पब्लिश्ड एंड एक्सपायर्ड, ऑल पॉसिबल स्टेटसेस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब इफ देयर इज नो चेंज इन स्टेट, ड्राफ्टेड टू ड्राफ्टेड देयर इज नो पॉसिबिलिटी। ड्राफ्टेड रिव्यूड जब हो जाएगा तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। रिव्यूअर रिव्यू करने के बाद वो रिव्यूड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जो ड्राफ्टेड है वो डायरेक्टली ना तो रिजेक्ट हो सकता है, ना पब्लिश हो सकता है, ना एक्सपायर हो सकता है। जो रिव्यूड है वो ड्राफ्ट और रिव्यू नहीं हो सकता और एक्सपायर नहीं हो सकता, लेकिन जो रिव्यूड है उसको चाहे तो रिजेक्ट किया जा सकता है। उसका स्टेटस होगा रिव्यूअर रिजेक्ट्स द ड्राफ्ट। या अगर जिसको रिजेक्ट नहीं करता तो पब्लिशर जो है वो रिव्यूअर को अप्रूव करेगा। रिव्यूअर अप्रूव कर देता है। इसका मतलब है कि जो रिव्यूड आइटम है वो इधर रिजेक्ट हो सकता है या पब्लिश हो सकता है। इसी तरह जो रिजेक्टेड आइटम है वो सिर्फ रीड्राफ्ट हो सकता है, उसको रीसबमिट कर सकते हैं एज अ ड्राफ्ट। तो फिर उसकी वही कहानी शुरू हो जाएगी, जब वो ड्राफ्ट आएगा तो उसको रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद अगेन वी विल टेक द डिसीजन ईदर टू रिजेक्ट इट और पब्लिश इट। जब कोई चीज पब्लिश हो जाएगी तो वो दोबारा ड्राफ्ट नहीं बन सकता, दोबारा रिव्यू भी नहीं होगा, वो दोबारा रिजेक्ट भी नहीं होगा, वो पब्लिश भी नहीं होगा, लेकिन वो एक्सपायर हो जाएगा 120 दिन गुजर जाने के बाद। जो चीज एक्सपायर हो चुकी है वो रीड ऑथर एडिट्स द एक्सपायर्ड रेसिपी, वो उसको दोबारा एडिट करके एक नए ड्राफ्ट की सूरत में दोबारा इनिशिएट कर सकता है। लेकिन जो चीज एक्सपायर हो सकती है, हो चुकी है, वो रिव्यू नहीं हो सकती, रिजेक्ट नहीं हो सकती, पब्लिश नहीं हो सकती, और चूंकि एक्सपायर तो पहले ही हो चुकी है तो मजीद एक्सपायर भी नहीं हो सकती। एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम इसको रीड्राफ्ट करें। ये जनाब आपका डाटा मॉडल था, स्टेट डायग्राम। इससे पहले स्टेट टेबल डिस्कस किया और अब हमने स्टेट डायग्राम को देखा। सॉरी, पहले हमने स्टेट टेबल को देखा है, ये स्टेट टेबल था, डायग्राम ये है। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि वही स्टेटसेस लिखे हुए हैं। जी जी सर, आई एग्री कि ये स्टेट डायग्राम है और इससे पहले हमने स्टेट टेबल देखा था। एग्जैक्टली। और जो डायग्राम में वही बात जो आपको स्टेट टेबल में नजर आ रही थी कि जो जो पॉसिबल स्टेटसेस का चेंज है वो इन लाइनों पे लिख दिया गया है और एरो शो कर है कहां से कहां जा सकता है। आप देख सकते हैं ड्राफ्टेड से ये रिव्यू में ही जा सकता है। रिव्यूड जो हो जाता है वो यहां से पब्लिश में जा सकता है एज रिव्यूअर अप्रूव, और वो रिजेक्टेड भी हो सकता है, रिव्यूअर ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो ये बिल्कुल उसी की इंटरप्रिटेशन है। तो इसको हम स्टेट डायग्राम कहते हैं। फिर आपके पास इंटरफेस मॉडल्स आ जाते हैं। ये अगेन 4 किस्म के हैं। रिपोर्ट टेबल है, सिस्टम इंटरफेस टेबल है, यूजर इंटरफेस टेबल है, फ्लो है, और वायर फ्रेम्स जिनको हम डिस्प्ले एक्शन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये इंटरफेस मॉडल जो है they depict the relationship within the solution to gain an understanding of which interfaces there are and the details of those interfaces। हमारे क्या इंटरफेसिंग है, कौन सी चीज किसके साथ इंटरफेस करेगी, कहां से निकल के कौन सी चीज किधर को जा सकती है। रिपोर्ट टेबल भी एक मॉडल है जो कि ये कैप्चर करता है कि डिटेल्ड लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है किसी एक दफा रिपोर्ट करने के लिए।
कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिपोर्ट इंक्लूड, उस रिपोर्ट में उसका नाम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, डिसीजन मेड फ्रॉम द रिपोर्ट, उसका फैसला होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ऑडियंस, ट्रिगर, डेटा फील्ड्स क्या हैं, डेटा वॉल्यूम कितना है, कितनी दफा ये चीज मूव करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्प्ले फॉर्मेट क्या है, किस तरह दिखाया जाएगा और क्या कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होंगी. These attributes should be specified alongside a prototype, for example, of the actual report, when possible, because it adds context for the textual information in the report table. While it is not necessary to complete all fields, the fields can be used to help identify what to think about when eliciting reporting requirements. एग्जाम्पल को देखते हैं. ये अगेन एक टेबल है. ये जो हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, ये उसका रिपोर्ट प्रोटोटाइप है. ये जनाब मोबाइल एप्लीकेशन यूजेज रिपोर्ट है. इसमें हम क्या कह रहे हैं? इसमें हम बता रहे हैं कि जी ये जो एप्लीकेशन है कि कितनी दफा डाउनलोड हुई है, कितनी रेसिपीज अपलोड की गई हैं, स्टोर आईडी क्या है, रीजन क्या है, नंबर ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम ट्रांजैक्शंस कितनी हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत उस बंदे ने, उस कस्टमर ने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, नंबर ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम ट्रांजैक्शंस बाय यूजर्स विद रेसिपी अपलोड, एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर ट्रांजैक्शन फॉर लॉयल्टी विद रेसिपी ट्रांजैक्शन एंड एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर ट्रांजैक्शन फॉर लॉयल्टी विदाउट रेसिपी ट्रांजैक्शंस. पहले केस में आप ये देखते हैं कि वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की अपलोड और डाउनलोड लिखे हुए हैं. स्टोर चूंकि है नहीं, इसका कोई रीजन भी कोई नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है. लॉयल्टी प्रोग्राम अब तक टोटल हमने कितने किए हैं? 78,563. लॉयल्टी प्रोग्राम ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं? 4,576. एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर ट्रांजैक्शन बनता है 34 और एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर ट्रांजैक्शन फॉर लॉयल्टी विदाउट रेसिपी ट्रांजैक्शंस ये बनते हैं 10. फिर अगले में आप देखते हैं उसमें स्टोर का नंबर और रीजन दिया हुआ है कि जनाब सेंट्रल टेक्सास में स्टोर नंबर 23548 जो है इसके ऊपर इतना इतना हुआ है. तो इस तरीके के साथ हमें पूरा स्टेटस मिल जाता है इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट टेबल में या इस रिपोर्ट प्रोटोटाइप में कि कौन कौन से स्टोर जो हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है. ये जनाब एक और एग्जांपल है रिपोर्ट टेबल की. ये जरा ज्यादा तफसीली है. इसके अंदर सारे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं. यूनिक आईडी, नाम क्या है, MAUR, मोबाइल एप्लीकेशन यूजेज रिपोर्ट, इसकी डिस्क्रिप्शन, डिसीजन मेड, ऑब्जेक्टिव. सर जी सर, तो अभी तक मुझे ये बात समझ में आई है कि जो डिफरेंट मॉडल्स हमने अभी तक पढ़े हैं जी उसमें से एक कैटेगरी तो हमारे पास वो है जो हम सिस्टम डिजाइन करते हुए बनाते हैं, ठीक है. एक वो है कि हमारा कंस्ट्रेंट वाला हमें अवेलेबल होते हैं और उसके ऊपर हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री. रूल्स. और ये तीसरा एक किस्म का मॉडल है. हाँ जी. और एक तीसरे किस्म का एक ये मॉडल है जहाँ हमारे पास डाटा भी मौजूद है हाँ जी और उसको हम एक रिपोर्ट में मैप कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम डिसीजन ले रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. बिल्कुल. और ये फिर आगे उसके बाद इंटरफेस के मॉडल आ गए और इंटरफेस के बाद हमारे कल प्रोसेस के मॉडल भी हैं. प्रोसेस हमने कर लिए थे कल. ये जनाब इसी कर लिए थे हमने रिपोर्ट टेबल्स की. और इसके अंदर वो जितने भी आपको बहुत सारी इसके फील्ड्स हैं, एलिमेंट सारे के सारे दिखाए गए हैं और उनके अगेंस्ट उनकी वैल्यू दिखाई गई है. ये डॉक्यूमेंट्स आपके इस काम आएंगे कि अगर आप ये वाला टूल इस्तेमाल करना चाहें तो ये फॉर्मेट उठाया जा सकता है और इसको टेलर किया जा सकता है अपनी नीड के मुताबिक. ठीक है सर.
रिपोर्ट टेबल के बाद सिस्टम इंटरफेस टेबल है। ये अगेन एक मॉडल है, ये भी एट्रीब्यूट्स बताता है जो दैट कैप्चर्स ऑल द डिटेल्ड लेवल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिंगल सिस्टम इंटरफेस। हर एक सिस्टम इंटरफेस का एक फॉर्म होगा, एक डाटा होगा, एक टेबल होगा, हर एक सिस्टम इंटरफेस के नाम से। सिस्टम इंटरफेस टेबल इज इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ये भी बिल्कुल एक इसी तरह की शीट होगी, एक वर्कशीट टाइप की चीज होगी, एंड टिपिकली इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स सच एज सोर्स सिस्टम क्या है, टारगेट सिस्टम क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाटा कितना पास होना है, सिक्योरिटी के और अदर रूल्स क्या हैं, और एक्चुअल डाटा ऑब्जेक्ट्स क्या पास हुए। यहां पे आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल। सिस्टम इंटरफेस टेबल में एक सिस्टम इंटरफेस को सिर्फ ये बता रहा है, कहता है जी इसका सोर्स क्या है, जी इस सिस्टम इंटरफेस का सोर्स क्या है, ये स्टोर से ओरिजिनेट हुआ। टारगेट क्या है, इसने कस्टमर के मोबाइल डिवाइस पे लैंड करना है, इसका आईडी नंबर कोई रख दें। डिस्क्रिप्शन है, पासिस स्टोर एंड रेसिपी इंफॉर्मेशन टू मोबाइल एप्लीकेशन, ये इसका काम है। तो ये कहां से चल के, स्टोर से चल के ये डाटा आपके टारगेट कस्टमर मोबाइल डिवाइस में जा रहा है। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, डेली, हम जो रेसिपी डेली भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डाटा डेली यहां से वहां जाएगा। वॉल्यूम इसका क्या है जी, लेस देन 100,000 रेसिपीज। सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट कोई नहीं है। एरर हैंडलिंग के लिए उसने कहा जी कि आप रेसिपी सिस्टम फ्लो को देखिए। उसके बाद इसके जो इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स हैं इस सिस्टम इंटरफेस के अंदर, उनको शो किया है। ऑब्जेक्ट क्या क्या है जी, स्टोर जो है उसको हम, उसका फील्ड रखा है स्टोर नाम, उसको डाटा डिक्शनरी में आईडी है RM02, और उसका वैलिडेशन रूल है कि उसकी वैल्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है। दूसरा रूल जो है वो स्टोर मैप का है, स्टोर से ओरिजिनेट हुआ ऑब्जेक्ट उसका, और नंबर है उसका, और इसका फॉर्मेट जो है वो JPEG। इसी तरह रेसिपी है, उसका कोड आपने रख दिया रेसिपी टेक्स्ट, नंबर है उसका, ये वर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर टेक्स्ट है, इसके लिए डाटा डिक्शनरी को रेफर किया जाए। इसी तरह स्टोर जो है उसके बारे में, स्टोर से हमें आइटम ओवरले आ रहा है, मतलब आइटम्स कौन कौन से, तो ये भी उसी तरह से वेल फॉर्म स्ट्रक्चर टेक्स्ट है। फिर आ जाता है जी यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस फ्लो displays specific pages or screens within a functional design and plots out how to navigate the screens according to various triggers. The boxes in this diagram are the main screens in the user interface. क्या क्या शक्लें screens नजर आएंगी? The lines show the flow allowed between screens. ये जनाब अगर बॉक्सेस को हम एक स्क्रीन के तौर पे देखें तो आप कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे सर्च रेसिपी की स्क्रीन है, उससे पहले लॉगिन की स्क्रीन आएगी। जब आप उस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे पहले लॉगिन की स्क्रीन आएगी, उससे आप रजिस्टर होना चाहें अगर नए यूजर हैं तो फिर आप सर्च रेसिपी पे चले जाएंगे। सर्च रेसिपी में आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं कि जी मैं मेल हूँ, मेरा ये डाटा है जी। सर ये जो यूजर इंटरफेस फ्लो है, इसमें डोंट यू फील के इसमें कुछ इंफॉर्मेशन कम है? क्या चीज फॉर करें? एग्जाम्पल कुछ कम इंफॉर्मेशन है, जैसे कि लॉगिन की स्क्रीन है उसमें यूजर आईडी एक पासवर्ड होता है, हाँ वो तो डिटेल, वो इंफॉर्मेशन हमने कहाँ कैप्चर की? ये सिर्फ इंटरफेस है स्क्रीन टू स्क्रीन। अंदर क्या हो रहा है, ओके, उसकी डिटेल। हाँ जी, अंदर की बात अभी डिस्कस यहाँ नहीं हो रही ओके। कि इसके बाद क्या होगा। इससे कम से कम हमें सारी स्क्रीन्स का पता चल जाएगा, क्या क्या हमारी मॉकअप में स्क्रीन्स क्या होंगी,
और उनका लेआउट और उनका सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कहां से कौन सी स्क्रीन पे जाया जा सकता है। और इसके अंदर लाजमी बात है पीछे प्रोग्रामिंग है, तो हम पीछे डिसीजंस भी रख सकते हैं। जैसे आप ये देखते हैं स्टोर फाउंड है, अगर सर्च फॉर स्टोर, अगर स्टोर फाउंड है तो स्टोर रिजल्ट की तरफ चला जाए, नहीं तो वापस दोबारा सर्च पे आ जाए नॉट फाउंड का मैसेज देके। तो इस तरीके के साथ ये चीज है, इसको हम यूजर इंटरफेस फ्लो कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द इंटरफेस मॉडल्स इज द वायरफ्रेम, जिसको डिस्प्ले एक्शन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। This model is used in conjunction with wireframes or screen mockups to identify page elements and the functions, if any, they are attached to. Each wireframe is broken down into user interface elements which are then described from a display perspective and a behavior perspective. The user interface element table is created for every element on the screen that has user interface requirements. Each table describes the user interface element display requirements under different preconditions and behavior conditions under and user actions. While this type of user interface analysis is sometimes performed by user experience analysts or human factors experts, the business analyst is often called upon to perform this function. वो उसको ये करके दिखाता है. In general, user interface analysis focuses on profiles of users who interact with the system and precedes interface design. Business analyst working in conjunction with the user experience analyst, when one is assigned, analyzes the user interfaces to see how well these interfaces meet the general principles of human-machine interface. इसमें जिन चीजों का ह्यूमन मशीन इंटरफेस के हवाले से ख्याल रखा जाता है, एक तो कंपैटिबिलिटी हो, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग दैट विल बी रिकॉर्डिंग दैट विल बी नेसेसरी फॉर ऑपरेटर्स एंड यूजर्स, राइट वंस रीड एनीवेयर। वो जो बार बार आप उसको बार बार राइट करते हैं, उससे बेहतर है मतलब एक डाटा आइटम डाला उसको राइट किया, तो हम क्या करेंगे, सारा डाटा एक दफा स्क्रीन में सारे कॉलम्स में भर लिया जाए, तब एक ही बटन दबाने से वो सबमिट हो। कंसिस्टेंसी मिनिमाइजेस द डिफरेंस इन डायलॉग बोथ विद इन एंड अक्रॉस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ये आपने अक्सर देखा होगा, फॉलो अ यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड सच एज कॉमन यूजर एक्सेस। एक ही तरह की एक्सेस स्क्रीन हो सबकी, सिर्फ उसमें लोगों ने डिफरेंट तरह से डाटा डालना हो। ऐसा ना हो कि एक आदमी के लिए और तरह की स्क्रीन नजर आए और दूसरे के लिए और तरह की, या उसके पीछे जो एल्गोरिथम है चेक करने का वो डिफरेंट हो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मेमोरी मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यूजर्स नीड टू मेंटेन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, ताकि आपको बार बार एक्सेस ना करना पड़े डिस्क को और रेडीली अवेलेबल हो। इसके लिए हम रेफरेंस टेबल्स को और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं टू फिल द फॉर्म। इस फॉर्म में डाटा जो पहले से मौजूद है वो वहां से आ जाए, दूसरी फॉर्म से आ जाए, और जो नहीं मौजूद वो हम फिल करें। ह्यूमन मशीन के कुछ जो जनरल इंटरफेस पॉइंट्स हैं उनमें स्ट्रक्चर भी आ जाता है। शो यूजर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम सो दैट दे आर एबल टू नेविगेट थ्रू द इंटरफेस इंट्यूटिवली। फीडबैक का भी तो होता है कि प्रोवाइड यूजर्स विद द फीडबैक एंड एरर करेक्शन कैपेबिलिटी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई और मसला है, तो वो आपको फीडबैक भी भेज सके। वर्कलोड कीप यूजर मेंटल वर्कलोड विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। आप उनको हाईली टेंस सिचुएशन में लेके जाएंगे, ये क्या स्क्रीन आ गई है, इसमें से कौन सा बटन दबाना है, ये किया तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज उसका यूजर का वर्कलोड कम करें, मेंटल टेंशन उसकी कम करें, उसको ईज प्रोवाइड करें। और फिर इंडिविजुअलाइजेशन है, अलाउ द कस्टमाइजेशन ऑफ द इंटरफेस टू डिटरमिन द रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअलाइजेशन। मतलब आप कहते हैं जी कि आप इसका बैकड्रॉप चेंज कर सकते हैं,
हर एक बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक बैकड्रॉप चेंज करे, मगर स्क्रीन के लेआउट में या स्क्रीन की के अंदर जो डाटा है उसकी अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोलैबोरेशन पॉइंट इसमें यह है कि बिकॉज द इंफॉर्मेशन elicited is complementary, the user interface analyst and business analyst should work together to support each other when eliciting requirements. ये जनाब आपकी एग्जांपल है वायरफ्रेम की, और इसमें उसने डिफरेंट डाटा आइटम जो आप पहले कह रहे थे ना कि ये स्क्रीन तो बता दी है, स्क्रीन के अंदर कौन सी चीज कहाँ होगी, वो ये वायरफ्रेम या डिस्प्ले एक्शन रिस्पॉन्स बता रहा है। अगर कस्टमर को ये दिखाया जाएगा, उसे पूछा जाएगा जी यहाँ इस तरह से बटन बना दें हम, ये ठीक लगता है आपको, और अगर वो उसके ऊपर कोई कमेंट करता है तो उसके हिसाब से उस चीज को चेंज कर लिया जाए। इसको हम वायर फ्रेम कहते हैं। इसी तरीके से डिस्प्ले एक्शन रिस्पॉन्स का मॉडल जो होता है वो एक टेबुलर फॉर्मेट है, जिसके अंदर हमने इस वायर फ्रेम को या इस डिस्प्ले को एक आईडी दी, उसकी डिस्क्रिप्शन दी कि ये अ फील्ड फॉर द यूजर टू एंटर हिज देयर पासवर्ड। तो जो पासवर्ड वाले फील्ड की सिर्फ बात कर रहा है कि पासवर्ड वाला फील्ड जो है वो उसकी बात है। उसका यूआई एलिमेंट डिस्प्ले क्या है, प्री कंडीशन है कि वो जब ऑन हो और स्क्रीन पे जाए तो सबसे पहले ऑन लॉगिन स्क्रीन पे जाए, वो उसका डिस्प्ले फील्ड है। दूसरी प्री कंडीशन है कि जनाब नो टेक्स्ट एंटर्ड, कोई चीज एंटर नहीं की तो वहां पे जहां पासवर्ड की जगह है वहां ग्रे रंग आ रहा हो। अगर टेक्स्ट एंटर हो गया है तो प्राइवेसी डॉट्स आर डिस्प्लेड पर करेक्टर, मतलब बजाय इसके कि आपके पासवर्ड जो आप टाइप कर रहे हैं वो लिखे जाएं, नजर आए, बल्कि उसकी जगह उसको छुपा दिया जाए और उसकी जगह कोई एरिस्टेरिक या कोई डॉट वगैरह इस तरह का कोई निशान वहां पे अपीयर हो। यूआई एलिमेंट बिहेवियर जो है उसकी प्री कंडीशन है कि ऑन लॉगिन स्क्रीन, एक्शन क्या है, सिलेक्ट द फील्ड, रिस्पॉन्स है कीबोर्ड अपीयर्स। जो ही आप ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर पासवर्ड के खाने में जाकर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड अपीयर हो जाएगा। अब क्या है, उस कीबोर्ड में हम क्या करेंगे, अब ये है टेक्स्ट एंटर, जब हम उसमें टेक्स्ट एंटर करेंगे तो एक्शन है एंटर एडिशनल टेक्स्ट, प्राइवेसी डॉट्स पर करेक्टर अपीयर। वो जो प्राइवेसी डॉट्स की हमने बात की थी वो अपीयर होंगे। तो आप बहुत ही ज्यादा तफसील के साथ एक एक एलिमेंट को यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। ओके जी, तो ये तो हो गए आपके मुख्तलिफ मॉडल्स। ये 18 के 18 मॉडल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब सर क्या हम आज का सेशन यहीं पे होल्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। और अच्छा सर, एक चीज ये कि मैं आपकी प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर रहा था तो उसमें एरर आ रहा है, तो आप काइंडली उसको दोबारा अपलोड कर दें ताकि मैं उसको डाउनलोड कर सकूं। मैं दोबारा कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। और ठीक है, तो बाकी ऑल गुड सर। फिर बाकी कल करते हैं फिर सेशन कल करते हैं, और फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉल। टेक केयर।